आप लाइव है, स्टार्ट करिए अपना. Okay, thanks a lot. Thanks a lot. Good evening, my dear viewers. I very much welcome you on this very august program on Education Pe Charcha. As you all, my dear viewers, reckon with this fact. This, myself, that is I Vivekanand, author, academician, and public intellectual. Just happens to be the convener of this particular program, and most importantly, this particular program, that is Education Pe Charcha, is conducted under the aegis of this talk, which is being spearheaded by Sri Pramodji, who in fact logs in from Dhanbad, and he takes care of all sort of technical, all sort of technicalities. My dear viewers, you all would appreciate, because we are very much into the 89th session today, and you all would reckon with this fact that Education Pe Charcha is synonymous with educating the nation, in as much as we keep on inviting, on our regular interaction, all top class achievers from myriad field of specialization. And this is, in continuation of the same. If you people can recall, my dear viewers, last Saturday we had the privilege of hosting one of the topmost IPS officers, a valiant IPS officer, Sri Rajiv Ranjan Singh Ji. And today we do have the bestowal of divine grace, in as much as we are hosting a young dynamic doctor who has qualified MBBS, then MD, MS, and of course he went to work in United States of America, obtained degree from America, then obtained the degree from Italy, and again came back to India to, to benefit the multitude through all sort of expertise that he gathered over decades of his stay in America, Italy, and India. My dear viewers, most importantly, this Education Pe Charcha happens to be an English channel, but indeed we have a provision that, that in case we have such august, guests who are either, either incapable of communicating in English language, number one, or he might be equally competent and proficient in English as well as in Hindi, but given his or her, mass followings, who do not comprehend English language, so therefore we have kept the provision for such august guests that we would be interacting in Hindi too, for the greater understanding, for the greater clarity of the communication to down upon the followers of such august guest. Then, if you people can recall, in course of last series or session on Education Pe Charcha, we have given the same leverage to our august guest, Sri Rajiv Ranjan Singh Ji, in as much as we had an interaction in Hindi. And therefore, keeping in view the convenience of today's very esteemed guest, as you would recall the fact that he is from United States of America, so English, he is equally proficient in English. But given the fact that he is logging in from Jharkhand, from Ranchi itself, where the vast, army of his admirers, they would feel comfortable in understanding, Hindi. Therefore, today's interaction, as it was the case on last Saturday, it is going to be in Hindi. But of course, I will ask the question in English, and then simultaneously I'll be translating it into Hindi also, so that the clarity of the, connotation of the question should down upon our, our viewers. So therefore, my dear viewers, without wasting any time, it is straightway now the session it is a time for introducing our esteemed guest, that is Dr. Abhishek Ramadeen Sahab. Very young doctor, as I said, but indeed he has won laurels in the, in his medical field. Very recently he was conferred upon, Jharkhand Bhushan Award by His Excellency, the newly appointed governor of the state. So you can well understand, even though he might be young so far as the age goes, but nevertheless he has won, series of laurels, whereas his overall assortment of accomplishments, are concerned. My dear viewers, just a little bit of a small introduction before straightway the question and answer session shall begin. Dr. Abhishek Ramadeen happens to be an MBBS, MS, ENT, that is ear, neck, throat, and head neck surgery
MD and FARS from United States of America. That is what I have been harping upon this particular, degree of his, that he has done FARS from United States of America and FIANO, FIANO, FIANO from that of Italy. And now, most importantly, today, he happens to be the coordinator of medical cell of Bharatiya Janata Party of Jharkhand, and then Secretary General, Federation of Jharkhand Chamber of Commerce. It is, of course, only doctor till date from that of state of Jharkhand to be adorning the position of that of the Secretary General of Jharkhand Chamber of Commerce. Indeed, some sort of very unparalleled achievement, and that too at such a young age. He deserves kudos and compliments from this august platform of Education Pe Charcha. And last one, he has very recently, he won the election, and today he's also holding a very coveted position of that of Vice President of Indian Medical Association of Ranchi chapter. So you can well understand at young age, Ramadeen Sahab, Dr. Abhishek Ramadeen has got a tremendous amount of achievements to his credit. He is very much into politics, and as well as, my dear viewers, he is a staunch aspirant to contest the election from Chhatra in 2024 general election. So he's also one of the very, probable candidates for contesting the election from BJP. That also happens to be a feather to his crown, because he is giving his medical expertise even for the benefits of political party, for the benefits of the multitude. Dr. Ramadeen Sahab, Dr. Abhishek Ramadeen Sahab, I very much welcome you, sir, on this very august platform of Education Pe Charcha. And here goes the first question in English. As I already informed my viewers, I'll be simultaneously translating my question into Hindi as well, so that the very import of the question should down upon that of our viewers too. So if you could, walking down the memory lane, if you could enlighten our viewers about your sophomoric years till your entering into medical profession. डॉक्टर साहब, आप कृपया अपने पीछे का यात्रा जीवन की तरफ मुड़े और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे आपने अपना जीवन का शुरुआत किया और अपने स्टूडेंट्स डेज में, और मेडिकल प्रोफेशन तक पहुंचने तक, याद कृपया मार्कर करें, मेडिकल प्रोफेशन पहुंचने तक, एमबीबीएस ज्वाइन करने तक अपनी थोड़ी सी संक्षेप में आप अपना जीवन का वर्णन करें. डॉक्टर, वी वेलकम डॉक्टर अभिषेक रामादीन साहब. प्लीज डॉक्टर साहब. थैंक यू विवेकानंद जी. एंड मैं इसके आंसर जाने के पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस परिचर्चा में बुलाया. और जैसा आपने बताया कि जो मेरे मैक्सिमम व्यूवर्स हैं, बिकॉज वी आर राइट नाउ इन झारखंड, हम लोग झारखंड में हैं, और क्योंकि मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव हूँ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, और मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हिंदी में बहुत अच्छा समझते हैं. तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सब मैक्सिमम चीज हिंदी में बोलूं, ताकि अभी भी लोग जो डायरेक्ट लाइव हो देख सकें, और भविष्य में भी जो लोग आना चाहें और इसको रिकॉर्डिंग्स देखना चाहें, तो उनको समझने में किसी तरह की कोई कलिष्ठता या कोई डिफिकल्टीज ना हो. हाउ आई बिकम डॉक्टर. So my mother wanted, when I also wanted to be a doctor, because it was a very pious profession. My Nana ji and a lot of people from my maternal side were doctors. So I saw their life. It was an extremely dedicated life. उनकी जो जिंदगी थी और काफी अच्छी थी, और सोसाइटी के लिए काम था, सोसाइटी में बहुत अच्छा उनका रिकॉग्निशन था. तो काफी सोचने के बाद में I have choices to go in anything, because my father was a businessman that time also. He wanted me to also to be into commerce and do businesses. But he always has given me. मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा ये लिबर्टी दी थी कि बेटा जो आप चाहोगे आप ऐसा करो. He was always a guiding force. He never enforced on me. He was always has provided me pathway. He never enforced on me. तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी मार्क्स आई थी 10th में, या पहले भी आई यूज्ड टू बी माय क्लास टॉपर्स. और 12th के बाद में जब सीबीएसई दी थी, तो पूरे इंडिया में मेरी रैंक नंबर 300 के आसपास में थी. एंड आई गॉट स्टेट जीएस मेडिकल कॉलेज, जो कि
मुंबई का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे सीखा अपनी पूरी, मतलब उससे अच्छा कॉलेज तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है जितने भी जगह पे मैं गया हूँ। तो that's how I got into medical college, and I did my MBBS from there. ग्रेट। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स खास करके आपके जो इतने बड़े फॉलोइंग्स हैं उनको थोड़ा ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आपसे मिले तो आपको याद होगा कि आपके पिताजी का काफी चर्चा हमने सुना, तो थोड़ा सा यह लाजमी होगा कि इट वुड बी वेरी एप्ट हियर इफ यू कुड जस्ट delve into some sort of facts and apprise our viewers about your father's nobility, because that also became an object of your quick rise or your identification with a very prominent success society. So please tell us about your father's contribution, please Dr. Sir. So my father was, is, and will be always a guiding force for my life. मेरे पिता जो है वो, हाँ, मेरे पिता जो है वो हमेशा मेरे गाइडिंग फोर्स रहे थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग दोस्त ज्यादा थे rather than बाकी जो ट्रेडिशनल जो फादर और सन का जो रिलेशनशिप होता है उसके कंपेयर में। एंड वी ऑलवेज डिस्कस्ड फ्रॉम द टाइम, मुझे लगता है कि मैं 8वीं के बाद से वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ही हैड रिकॉग्नाइज्ड मी एज एंड ही ऑलवेज एडवाइस्ड मी। ही वाज ए वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर पर्सन। मेरे पिता बहुत पॉपुलर पर्सन थे झारखंड में और बिहार में भी मैं बोलूँ, क्योंकि मेरा ननिहाल बिहार है और मेरा अपना घर इटखोरी जो है चतरा में है, और पिता की जो कर्म भूमि थी वो रांची थी। और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। जितने भी लोगों के लाइफ को उन्होंने टच किया, सब जब वो गए हैं तो सब रोते हैं और हर एक आदमी उनको मिस करता है। उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए इमेंस था, है और हमेशा रहेगा। मैं 1918 में बॉस्टन में था और आगे मैं क्लीवलैंड क्लिनिक वहाँ ओहायो में शिफ्ट होने जाता क्लीवलैंड में। तो ही आस्क्ड मी दैट टाइम बिफोर आल्सो कि बेटा अगर आप यहाँ आओगे तो झारखंड में हमको सब लोगों को आपकी बहुत जरूरत है, और अगर आप वहां रहोगे फिर भी आप अच्छा करोगे। यू विल राइट बुक्स, यू विल डेडिकेट योर लाइफ फॉर एजुकेशन, यू विल डेडिकेट योर लाइफ फॉर रिसर्च। मैं बहुत बड़ा रिसर्चर भी हूँ, मतलब मैंने काफी सारी रिसर्च करी है, लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसर्च, चाहे वो जानवर पे रिसर्च करना हो, आदमी पे रिसर्च करना हो, तो बहुत सारी करी है हम लोगों ने। तो ही बट अगर आप यहाँ आते हो तो आपकी जरूरत हम लोग सबको है, और द वे लाइक यू विल कंट्रीब्यूट हियर, दैट्स रियली रिक्वायर्ड। और इतना जो आप पढ़ लिख के आओगे तो ये बहुत फायदा होगा यहाँ हम सबों को। तो दैट वाज द रीजन आई केम बैक। एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड 2021 में उनका डेथ हो गया। एंड देन सडनली ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट ही वाज कैरिंग फॉरवर्ड, people expected me to carry the same thing. So being a doctor also, like I got into Federation of Jharkhand Chamber of Commerce, और बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां रहती है, तो सब लोगों को पता है। तो मैं धीरे धीरे मैंने कोशिश करी कि उनकी जो जिम्मेदारियां, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने कंधे पे लूं। सो फार आई एम डूइंग वेरी नाइस, ऐसा लोग फीडबैक देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके पिताजी का शुभ नाम बताएं हमारे दर्शकों को। अच्छा, मेरा जो नाम डॉक्टर अभिषेक रामाधीन आप जानते हो, तो वो एक्चुअली मैं सिंह हूँ, अभिषेक रामाधीन सिंह। तो मेरे पिता फादर इज रामाधीन सिंह एंड आई टुक माय सरनेम एज हिज नेम, सो दैट्स हाउ आई बिकम अभिषेक रामाधीन। Great, thanks. My dear viewers, Dr. Abhishek Ramadhin, just now, the sort of disclosure that he made, instantly a sort of recollection came to my mind, especially in Maharashtra and in southern part of India. Sons, they inherit the surname of their father. Like Sunil Manohar Gavaskar, India's greatest cricketer ever, Manohar was the name of his father. So as Dr. Abhishek just now recalled or recollected the facts as to how he inherited the surname of his father, rather I would say his first name of his father. So, by way of recollection, it just struck me that I should share this very important piece of information with all of you. Thanks, Dr. Saab. Indeed, my dear viewers, it also becomes very, very important, another incumbent on the part to just, to emphasize on the fact that a particular adage which goes in Bihar or in Mithila part, that, Bade Put Pita ke dhar mein kheti upje apne kar mein. A son is always known by the nobility of his father. And I tell you, when I met Dr. Abhishek Ramadhin at someone's residence, I was stupefied,
to see the sort of recognition that came his ways, not by virtue of his own accomplishment, which is absolutely in plenitude, but by virtue of the nobility of his father. The moment he just introduced himself, everybody lapped up the contribution of his father. Really, lo and behold, I was in fact taken aback. It came to me as a bolt from blue that about the nobility of his father. That's why I thought it was absolutely quintessential part of this ongoing, interaction between both of us, that I should, recall the contribution of his father. And that's why I requested Dr. Abhishek just to sum it up about his father's, contribution with all sense of nostalgia. Thanks, Dr. Saab. Thanks a lot. Coming to the next question to you. If you could kindly describe your days now, since you're doing MBBS, till your MD and FARS from United States and Fiano from Italy. Please, Dr. Saab. Yes, so after I finished my MBBS, and then after I asked my father. Actually, I wanted to do my MBBS from RIMS, Ranchi, यहाँ पे से. लेकिन father ने बोला नहीं, आपकी जो रैंक अच्छी आई है, and whatever the best medical college you should choose, आप वहाँ जाओ. और फिर उसके बाद में फिर I asked, we discussed, and then after I took my United States medical licensing exams. तो उसकी 4 steps exams की होती है. I cleared all my exams, and then I went to US. फिर वहाँ पे भी मैंने आगे पढ़ाई करी टेम्पल यूनिवर्सिटी की. And then after I came back again because of a lot of attachment with my family, my father is everywhere. And then I did my master in medical ENT and head and neck surgery. And then I was again in KEM, and then I was in cancer. And आप जैसे जानते होंगे कि अच्छे सर्जन बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. So again I went to Europe, did my lateral skull base surgery from Piacenza, Italy, and then I was in खुद फियानो आप देख रहे हो, बट उसके अलावा I went to Switzerland to learn laryngoscopy. या फिर I went to France also. I went to Germany also to learn ESSV lateral skull base, and then I went again to the United States for doing my fellowships. That was 1 year at Baltimore and then another year at Boston. And they're primarily learning was अभी जैसा कि हम लोग आप सामने ही थे कि एलर्जी हो गई, कि नाक पीले हो गई, इसके अलावा नाक के थ्रू जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया. तो पहले जैसे ब्रेन ट्यूमर करने के लिए आपको पूरा दिमाग का ढक्कन खोलना होता था, एंड देन तो बहुत दिनों तक रखना पड़ता था पेशेंट को. अभी के टाइम में मैं नाक के थ्रू जाके जो इंटीरियर स्कल बेस की जो ब्रेन ट्यूमर है उसको कुछ घंटे में निकाल सकता हूँ. पेशेंट को देख के कोई बोल नहीं सकता किसका सर्जरी हुआ है. तो स्कल बेस सर्जरी वगैरह बहुत आसान हो गया है. अब जैसे गर्दन का जैसे मैं कैंसर की सर्जरी करता हूँ, तो कैंसर सर्जरी में जैसे अमेरिका में जब मैं वहाँ पे था, 2 कैंसर सेंटर बहुत फेमस है वहाँ. एक स्लोन कैटरिंग जो कि न्यूयॉर्क में थी, आई बीन मल्टीपल टाइम्स देयर टू, एंड जो एमडी एंडरसन जो टेक्सास में है. तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने, जैसे मेरे टीचर्स जो थे तो उनका कहना था कि अगर हेड एंड नेक सर्जरी में जैसे पहले लोग बॉटल की बोतल खून चढ़ाते थे, कि अगर 20 ml से ज्यादा अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो आप अच्छे सर्जन नहीं हो, आपको दोबारा जाके फिर से सीखना चाहिए. तो दैट्स हाउ व्हेन आई प्रैक्टिस हियर, तो मेरी जो सर्जरी होती है तो उसमें ब्लीडिंग नियर अबाउट निल होता है. हार्डली मुझे नहीं लगता है कि शायद ही मैंने कभी किसी को ब्लड चढ़ाया होगा सर्जरी, बड़ी सर्जरीज के बाद में भी. अब जैसे सर्जरी जैसे ब्रेन ट्यूमर ही हो गई तो मिनिमल इन्वेसिव होती है, आप नाक के थ्रू जाते हो, ब्रेन के ट्यूमर को निकाल लेते हो, कुछ नहीं होता. अभी जैसे बहुत सारे अभी लास्ट वीक भी मैंने एक आंख के नीचे पूरा ब्रेन के अंदर घुसा हुआ जो था, एंड पेशेंट वर डिस्चार्ज जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग. तो जो नई टेक्नोलॉजी जो खासकर जो यूएस में आई है, आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग इन माय हॉस्पिटल एंड एक्सट्रीमली चीप प्राइस. जो सर्जरी आप अगर अमेरिका में करते हो आपको लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में पेशेंट को कॉस्ट पड़ता है. अगर आप बॉम्बे में भी करते हो या दिल्ली में करते हो, द कॉस्ट फॉर समवेयर 5 to 10 लाख के बीच में कम से कम. आप यहाँ पे रांची में मेरे पास 1 लाख से भी कम में आप उसको करा सकते हो. बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, इट्स नॉट जस्ट रांची, पीपल आर कमिंग टू मी फ्रॉम अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज आल्सो, a lot of other places too. Or I think probably I am providing a very good medical expertise to them. So that's how my journey was, and so far right now I'm doing. Future में also I want to contribute more towards the research. जैसे कि if today United States or Western Europe is
mile ahead from us. The reason is they are mile ahead in research. Research is the way you can foresee that how the things would be after 20-30 years. तो मेरा अपना सपना है कि यूनिवर्सिटीज ज्यादा हो अपने पास में, मेडिकल कॉलेज इतने क्वालिफाई इतना अच्छा बने, रिसर्च जो है सो वी आई शुड बी, जिस समय मैं थोड़ा सा जब उम्र हो जाऊं तो मैं देख पाऊं कि मेरे झारखंड में उस लेवल का रिसर्च लोग कर रहे हैं जो अमेरिका के लेवल का है। तो ये सब मेरी प्राइमरी सपना है और हम लोग बहुत प्रोस्पेरस रहे। आज के दिन में जो हमारे यहाँ पे जो स्टिग्मा लगा हुआ है कि आप झारखंड से हो और या फिर इस रीजन से होते हैं, बिहार में ही जो मेरा ननिहाल है, इतना सही एक्चुअली मेरा ननिहाल समस्तीपुर में कुछ सालों में, तो ये जो स्टिग्मा है इस रीजन से होती है, आप लोग सबसे गरीब हो, बीमारू में सबसे पहले जब बिहार आता था, बिहार और झारखंड दोनों आ जाते हैं। और अगर पर कैपिटा इनकम की अगर जैसे बात करें तो हम लोग पूरे कंट्री में जो 28 देश और इसकी केंद्र शासित प्रदेश मिला के 30वें नंबर पे हम आते हैं, 21वें नंबर पे बिहार आता है। तो ये स्टिग्मा चेंज हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज ओवर हियर, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स ओवर हियर। तो वो चेंज अगर परिवर्तन में ला पाया तो मैं सोचूंगा कि मेरी जिंदगी सफल हुई, मेरे पिताजी का सोच सफल हुआ, जो लोगों का एक्सपेक्टेशन मेरे से हो सफल हुआ। अगर दैट्स व्हाट माय विजन इज, एंड टुडे इट्स very much focused on the medical field also, as well outside medical field also. Great. Great, Dr. Saab. My dear viewers, it becomes very incumbent on the part here to inform all of you that I, being a very author of Yes, I Am Bihari, the book where I try to showcase the glory of Bihar at the World Forum. Of course, when Dr. Abhishek ji comes out with a very, very important revelation, which he alone has the potential of revealing, because we have to appreciate the fact that he is the one, at such a young age, he had been to almost different parts of the world, including United States, European countries, which includes Switzerland, Italy, so many countries he has been exposed to the sophistry of the Western world. So the sort of vision that he embodies or he epitomizes, if that is being put to application in Bihar, of course, in the medical field, it will be some sort of revolution. No denying the fact. And in this context, I recall, which becomes very incumbent on my part to again reveal to all of you, when my very pioneer book in the world, I wrote The Living Legends of Mithila, which was being launched in Delhi in Gandhi Peace Foundation. One of the guests I invited, Sri Saryu Rai ji, the people's leader. Subsequently, I wrote a book on him, the people's leader. So he came out with the same statement which Dr. Abhishek ji coincidentally has made just a couple of minutes back. Rai Sahab was of the opinion that, because in that particular August occasion of book launch, a lot of topmost people from Bihar were present. So Rai Sahab was of the opinion that despite Bihar producing the gems of people in different fields of specializations, but nevertheless the sort of stigma that Bihar itself carries continues to remain intact. So that when Dr. Abhishek ji is trying to emphasize on that very important fact that he indeed, is a crusader in the path to remove that sort of stigma, to eliminate that sort of stigma, we extend our best greetings and compliments to him, and along with our best wish that he must succeed in terms of, eradicating or completely obliterating the last vestiges of that sort of stigma, which continues to attach with that of the residents from Bihar and Jharkhand. Thanks a lot, Dr. Saab. Coming to the next very, very important question now. डॉक्टर साहब, इसको हम हिंदी में भी दोहराएंगे, आपका सब ऑडियंस लोग बढ़िया से समझे। यू आर ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स. In fact, you are the first medical doctor to be elevated to the position of Secretary General, the General Secretary of that of Jharkhand Chamber of Commerce. How do you trace the link of your medical profession with that of the Chamber of Commerce? डॉक्टर साहब, अब हिंदी में, आप पहला डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से सेक्रेटरी जनरल तक पहुंचे हैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किस तरह का लिंकेज आपका मेडिकल प्रोफेशन से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में आप देखते हैं, जो कि आपको मोटिवेट किया वहां तक पहुंचने के लिए। प्लीज डॉक्टर साहब, योर टेक नाउ। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, ऐसा नहीं, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देयर आर प्रोफेशनल्स आल्सो, इंक्लूडिंग मेनी डॉक्टर्स एंड मेनी हॉस्पिटल्स आर पार्ट ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और आपको जैसा एक बुक है, उसको रिच डैड पुअर डैड, पतली सी बुक है,
तो मैं बोलूंगा सबको एक बार पढ़नी चाहिए। तो उस बुक का जो क्रक्स है वो ये है कि 80% चीज आप अपने माँ बाप से अपने घर में वाइल ग्रोइंग सीखते हो, 20% चीज आप यूनिवर्सिटीज में जाके सीखते हो, आप पढ़ाई द्वारा सीखते हो। तो बिकॉज आई ग्रू अप विद माई फादर एंड मेनी ऑफ द पार्ट, जैसे चाहे वो टैक्सेशन हो, एंड माई फादर वॉज ए बिजनेसमैन, हमारे मोटर पार्ट्स का एजेंसी का पूरे झारखंड के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो कि एज ए डॉक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी बिजनेस के बारे में समझना, और रनिंग ए हॉस्पिटल इज ऑल्सो बिजनेस। तो आज के दिन में पिताजी के देहांत के बाद बेसिक जो बिजनेस है जो फादर वाली, उसको भी मैं देखता हूँ, और मेरा छोटा भाई प्राइमरी जीवन स्टार्ट। तो मुझे लगता है जो अंडरस्टैंडिंग है सब चीजों की, वो डैडी के कारण मुझे काफी अच्छी आई। और डैडी की मृत्यु के बाद जैसे घर वालों का, समाज का, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे, सबका मानना था कि अभिषेक जी आप बहुत अच्छा करेंगे, और पहले भी मैं मेडिकल देख रहा था, अगर आप यहाँ आते हो। तो लोगों ने काफी इनकरेज किया मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, एंड सो फार इट्स बीन सो मेनी मंथ्स, एंड जैसा मुझे लग रहा है कि आई एम डूइंग दिस, मैं बहुत जस्टिस कर पा रहा हूँ इससे। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट तो मेरे साथ में जो हमारे जैसे प्रेसिडेंट हो गए, या फिर हमारे साथ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो मेरे साथ के जो मेरे जूनियर सेक्रेटरीज हैं, बाकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज के जो बाकी मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर हेल्पिंग मी अ लॉट। और चूंकि जैसे बीच में अगर मैं इमरजेंसी सर्जरी कर रहा हूँ या बाकी कर रहा हूँ, तो somebody else takes my responsibility and they do it like, and it's a very good environment हमारे वहाँ पे है। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अभी हाल में ही जैसे कि खाद्यान्न व्यापारियों पे 2% 4% का जो टैक्सेशन के कारण हमने पूरे राज्यव्यापी जो बंद करी थी, तो आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड a lot, and me and the president and secretary, so we provided a very good leadership to all, and it was a very successful strike. Finally government bowed down and they accepted कि हाँ, हम लोग जैसा चाहते हैं, हम लोग की बिना वार्ता के, बिना हम लोग की सहमति के कोई भी चीजें आगे नहीं होगी जैसी होनी है। तो सो फार वी हैव बिन, जो हमारी जितनी जो पूरी टीम है, और मैं सब चीजें अच्छे से कर पा रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को और करना है जिसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास रखते हैं। हम लोगों को, जब से मैं जनरल सेक्रेटरी बना था, तो जब से मैं यहाँ आया था, तो हम लोगों ने एक नया चीज शुरुआत करी एक्सिक्यूटिव कमेटी में, कि पहले एक एक्शन टेकन रिपोर्ट्स पहले पेश करेगा, उसके बाद में बाकी सब चीजों की लास्ट वाली जो मीटिंग हुई, तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या क्या एक्शन लिया। तो a lot of stuff like we also want like things to be always proactive rather than active। चीजों को प्रोएक्टिविटी से अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, चीजों को कर सकते हो। तो ऑल ऑफ अस आर वेरी प्रोएक्टिव, एंड सो फार जो अगर ये रिपोर्ट कार्ड पूछूं, तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। Great, great, Dr. Saab. I'm just straight away coming to the next question, Dr. Saab. You are a director of a hospital founded by you in Ranchi. If you Yes, could sir. share details with our viewers about this hospital. डॉक्टर साहब, आप एक डायरेक्टर हैं एक हॉस्पिटल का जो कि रांची में चल रहा है, और आपने काफी उपलब्धियां भी पाई हैं, क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व से झलकता है। क्या उस पर यदि थोड़ा सा आप टिप्पणी करें, हॉस्पिटल के बारे में कैसा क्या फंक्शनिंग है, इस पर आप थोड़ा टिप्पणी करें प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो मेरी हॉस्पिटल है, हमारे पिताजी ने एक आरएमजे बिल्डिंग बनाया था। माय फादर वांटेड, जिस समय मैं यहाँ आया वापस से मेरे पास, कि यू स्टार्ट योर हॉस्पिटल। लोगों को जो बड़ी बड़ी सर्जरी जो तुम करके आए हो, जो सीखे हो, तो शुरू में तो तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ मैं रोबोटिक सर्जरीज करता था, मैं लेजर से सर्जरीज करता था, मैं सारी हाई इक्विपमेंट सर्जरीज करता था व्हेन आई वाज देयर, एंड थिंग्स वेर वेरी डिफरेंट देयर, क्योंकि जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी वहाँ पे काफी ज्यादा हाई अच्छी थी। यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने शुरू में ही मेडिका, जो यहाँ की जो रांची की जितनी मेरी मेजर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मेडिका हो, मेदांता हो, ऑर्किड, सेंटा बेटा, राज, एंड देन गुरु नानक, और बाद में मैंने जो है सो एक और हॉस्पिटल से ज्वाइन करे थे। फिर जो कोरोना टाइम में डैडी ने बोला कि नो, यू शुड स्टार्ट योर ओन, एंड आई स्टार्टेड माय ओन हॉस्पिटल। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस हॉस्पिटल वाज, जैसे मेरे इक्विपमेंट्स अगर बात करूँ, तो मैंने करोड़ों के इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, क्योंकि एक इक्विपमेंट अगर आप झारखंड में लेते हैं, तो इट इज एक्चुअली में अमेरिका में सस्ता पड़ता है, झारखंड में महंगा पड़ता है, बिकॉज आई हैव टू पे अ लॉट ऑफ चार्जेस एंड ऑल। बट बिना अच्छी इक्विपमेंट के आप बड़ी सर्जरी, अच्छी सर्जरीज नहीं कर पाओगे। तो इक्विपमेंट्स वगैरह मैंने बहुत अच्छे ले रखे हैं, और मेन रीजन जो इस हॉस्पिटल को खोलने का है कि बहुत महंगी जो सर्जरी है उसको सस्ते से सस्ते दामों तक लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों तक अवेलेबल करा सकूं। और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए पहले उनको बहुत बाहर जाना पड़ता था, एक्चुअली में आजकल में तो रिवर्स
मेडिकल टूरिज्म हो रही है मेरे यहाँ पे। लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे सर्जरी कराने के लिए, फ्लाइट लेते हैं, दिल्ली से आते हैं, फ्लाइट लेते हैं, हैदराबाद से आते हैं। और उनके फ्लाइट लेके आने जाने में भी जो यहाँ पे बहुत सस्ते में हो जाता है कंपेयर टू व्हाट दे कुड हैव डन ओवर देयर। और मैं पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन स्टाइल से मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ डे केयर सेंटर 3-4 आवर्स पे ही मैं बड़ी से बड़ी सर्जरी करके पेशेंट को डिस्चार्ज करूँ। जो बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है उसमें भी मैं 24 आवर का हार्डली एडमिट कर सकता हूँ। तो पेशेंट्स को भी ये बहुत फायदा होता है इससे कि आप इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी करके आप छोड़ दे रहे हो। अब कान के पर्दे का सर्जरी किया, ठीक है, आप 2-3 घंटे में घर जाओ। आपने साइनस की सर्जरी की, जैसे पहले लोग नेजल पैक करते थे, यहाँ पे रैम्पेंट है पूरे इंडिया में, मैं नेजल पैक नहीं करता। लोगों को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, आपकी सर्जरी है, तुरंत बाद नाक से आप सांस लो। तो a lot of things which has changed, and this is my pure ENT hospital and I am working over here. थोड़ा सा तो अभी इस समय चूंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे जगहों पे है, चेम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू। तो थोड़ी बहुत तो इश्यूज आती है, बट सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है आप टाइम तो दे रहे हो। और प्राइमरीली योर टाइम, योर थिंकिंग व्हाट्स मैटर, क्योंकि काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, अगर आप सोच सही करके अगर दे रहे हो तो देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल्स हु कैन हेल्प यू आउट, हु कैन वर्क विथ यू, सब कंधे से कंधा मिला के आपके साथ सब मिलकर काम करते हैं। तो ओवरऑल जो सोसाइटी की एम्बियंस है, जो काम करने का एम्बियंस है, और क्योंकि मेरा जो अपना हॉस्पिटल है, तो मैं अपने उस हिसाब से टाइम दे पा रहा हूँ। और जो पेशेंट्स आते हैं उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छी है। और बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में यहाँ करता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कोरोना के जसवाल में डैडी का जैसे डेथ हो गया था, आई वॉज ऑल्सो इन ICU। आई थॉट कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी लंग स्कोर 21/25 थी, मतलब आई कुड नॉट इवन स्पीक, आई कुड नॉट टॉक, खाना नहीं खा सकता था। बिस्तर पे वो यूरिनल लेके बाथरूम ले जाने के लिए भी ऑक्सीजन के साथ में लोग गए थे, तो 3 लोग पकड़ते। और जब वहां से मैं बाहर आया तो 3 दिन के अंदर से ही यहाँ पे ब्लैक फंगस चारों तरफ हो गया था। मुझे खुद उतनी सारी जो दवा चली थी, तो 250-250 यूनिट मुझे इंसुलिन लेना पड़ता था उस टाइम में। आई वॉज हैविंग लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बिकॉज ऑफ सो मच स्टेरॉइड एंड अदर्स मेडिकेशंस जो कोरोना में मुझे चला था। 6 यूनिट तो प्रागा मुझे चढ़ी थी मेरे जान बचाने के लिए। बट ये लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, सब लोगों का मेहनत रहा, प्रयास रहा कि मैं जिंदा बचा। और उसके तुरंत बाद में मुझे लगता है कि शायद मैं पहला सर्जरी की, उसके बाद में ट्रैकियोस्टोमी था जब मैं वापस आया हूँ, तो इट वाज इन ऑर्किड में थी बच्चे की, छोटा सा सर्जरी होता है। बट मैं इतना ज्यादा कमजोर था कि उसको करने के बाद में मुझे 3-4 घंटे वहां बिस्तर पर लेटना पड़ा था। आई वो नीड, मतलब मुझे ऑक्सीजन की खुद जरूरत पड़ रही थी, इतनी बुरी हालत थी। बट फिर भी मैंने लगभग 36-37 ब्लैक फंगस के सर्जरीज करी थी। हार्डली अ फ्यू हैव डाइड। अच्छा, ब्लैक फंगस एक ऐसा है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में 50% लोग भी अगर जिंदा बचते हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मेरे ऑपरेटेड 90% से ऊपर लोग बचे हुए हैं। मेरी वो जो रिसर्च थी उसका पब्लिकेशन भी मैंने करा, उसकी आज के दिन में 350 साइटेशन है। हमारे रिसर्च फील्ड में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसकी रीडिंग्स है लगभग 2,500 के आसपास में। So that was also major. Whatever I did, I contributed that also in the research papers and other places. And so far, like that research paper last year का, वो इंडिया का बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मिला था उसे। तो जो अपने इस हॉस्पिटल से जो कंट्रीब्यूशन मैं चाहता था, चाहे डायरेक्ट पेशेंट्स को कंट्रीब्यूट कर सकूं या रिसर्च के बारे में बात कर सकूं या उस हिसाब से कर सकूं, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ठीक है, आई एम इन्वॉल्व इन मेनी प्लेसेस, बट आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई ऑल माई रोल्स whatever I could do. Great, great, Dr. Saab. Dr. Saab, थोड़ा सा hospital, if you could just tell us the name of your hospital and location. अच्छा, I put my hospital name is my name, Dr. Abhishek Ramadhin Hospital. In research center, I put my son name. Avyan is my son, so I put his name, Avyan Research Center, and it's in Piska More. और हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है किशोर मंत्री जी, तो उनकी बगल में होटल है, मंत्री होटल, एंड दिस माय हॉस्पिटल इज इन RMTM भवन, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू दैट होटल, मंत्री होटल, एंड इट्स प्राइम लोकेशन से। और उस साइड से होता है, इस साइड से अभी तो नई ब्रिज बन रही है, आप सब जानते हैं कि रांची की ट्रैफिक क्या क्या करती है, बट वो ग्रेजुअली ब्रिज के साथ सुधार होगी। And per day, near about I see around 40 to 60 patients, and I operate about 1 to 4 surgeries. Fantastic, great, Dr. Saab. So, my dear viewers, we have seen, we heard with rapt attention that when Dr. Saab was explicating on the sort of his exploits
and there is not even an iota of exaggeration, neither there is any penchant or any predilection for any sort of publicity, because he himself is known everywhere. I have seen the maturity that he has attained at such a very young level. That is something, something which is, I wouldn't say unparalleled, but which is really something to be admired. Apart from his persona, his accomplishments, his overall intellectual maturity, that really attracted me towards him. That I must, emphasize on this very, very important fact, which becomes self-explicit when he articulates about all his experience, and in such a, with all sort of simplicity, it becomes obvious to us. Thanks, Dr. Saab. I'm straightway coming to the next question. You are also the vice president of Indian Medical Association in Ranchi, and you informed me that you won the election very recently, and of course, lots of people from Jharkhand, from different sections, congratulated you for your elevation as vice president. So if you could just apprise our viewers about the modus operandi of this medical association, sort of functions that you people discharge in the capacity of the officials of the organization. Please, sir, your take on this. So I feel extremely pride that now I am getting to work as a vice president of Indian Medical Association Ranchi Sector. And the seniors, all the seniors, they loved me and they love to be in with this place, this position. And all the doctors are having बहुत ज़्यादा expectations है सबकी, and I will try to fulfill the expectations है सबकी. अभी जो सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी हम बात करें, हमारी IMA की जो बिल्डिंग है वो आप जानते हो कि करमटोली चौक पे है, प्रेस क्लब के जस्ट नेक्स्ट वाली बिल्डिंग, और सीनियर्स ने भी बहुत काम करा है, हमारा बहुत पुराना इतिहास है, और IMA जो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग संस्था है, और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बाकी सोसाइटी भी IMA की तरफ हमेशा एक ऊंची नजर से देखती है कि IMA के जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स विंग है, उनकी सोसाइटी के प्रति जो कर्तव्य है, जो IMA के प्रति जो है, तो IMA हैव वेरी बिग ग्लोरियस हिस्ट्री, और बहुत अच्छा लोगों ने काम करा है इसका। और अभी के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने देखा, जो लास्ट कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूसली अब्यूजिव बिहेवियर्स हो रहे थे, कुछ मर्डर अटैम्प्ट्स हुए, और एक मेडिकल प्रोटेक्शन बिल है, इसको सोसाइटी का हर एक तबका चाहता है कि वो पास हो, क्योंकि जब भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करता है, फिर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में स्ट्राइक में जाता है, नुकसान किसको होता है? डॉक्टर्स को, सारे पेशेंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो जो कि 28 में से 23 राज्यों में पास है, अनफॉर्चुनेटली जिन 5 स्टेट में पास नहीं है उसमें हम हैं, और बहुत बार ये हमारी विधानसभा में गई, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको रोक लेते हैं कहीं ना कहीं, अभी फिर दोबारा अप्रूवल समिति के पास ले गए। तो इसको पास कराना, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो IMA के पास में भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सारे के सारे जिम्मेदारियों पे जो आपके सीनियर्स हैं उनके मार्गदर्शन में बहुत खरा उतरूंगा। और IMA के जो रूल है, अदर देन डॉक्टर्स ऑल्सो, वी विल ट्राई टू डू a lot of stuff, multifaceted stuff for rest of the society also, whatever we can do to improve our society as a whole. Great, fantastic. Now I'm straightway coming to the next very, very important question. My dear viewers, it becomes very much incumbent on my part to make an announcement here that, I keep on, even with many of our guests on this august platform of Education by Charcha, I keep on harping on this very important observation made decades back by India's greatest constitutional jurist, Nani A. Palkiwala, in his world famous book, We the People. Great constitutional jurist had request, I would say that he had given a clarion call. It was an invocation from the constitutional jurists to the youth of the nation that they should increasingly take to politics, because great Nani Palkiwala was profoundly or overwhelmingly concerned about the deterioration in the quality of legislation making. And that is why he had beseechingly, he had appealed to youth section of the population that they should take to politics in order to improve the overall quality of legislation making.
And we all know it is an open secret that about the quality of today's politician. Therefore, it becomes very, very important in contemporary times that youth, especially IAS, doctors, chartered accountants, lawyers, they should take to politics. Lawyers, of course, even since decades they have been participating in political process, but for doctors to increasingly come to join politics indeed is a very, very welcome sign. In course of last interaction, I was glad to know, I'm talking about the just preceding session, that one of the heroes of Jharkhand in the police department, that is Rajshri Rajiv Ranjan Singh ji, is thinking in terms of joining politics. In fact, he is already into politics. It is the need of the hour that educated people from intelligentsia class should take to politics. And our August guest today, Dr. Abhishek Ramadin Sahab, who has done lot of work, even you can see his age. He has done a lot of work in the medical field, but his inclination to join politics definitely is very, very welcome here. So now comes the next question, Dr. Saab. You are a coordinator of medical cell of BJP, Jharkhand. What sort of works you have done till date as the coordinator of medical cell of BJP? Your take on this, please. So first of all, I just know, as you said, that politics. So I would say one thing. अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो या बहुत अच्छे अधिकारी हो, आप अच्छे डॉक्टर हो, ठीक है, यू कैन रन योर ओन हॉस्पिटल. आप अपने 20 बेड हॉस्पिटल को 200 बेड हॉस्पिटल बना सकते हैं. यू कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द सोसाइटी समहाउ. आप एक अच्छे अधिकारी हो तो भी आप अपना पार्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो. आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में अपने थ्रू. लेकिन अगर आप सोसाइटी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आपको जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी, एवरीथिंग कम्स डाउन टू द पॉलिसी. अगर पॉलिसी चेंज नहीं होगी तो आप ईज ऑफ लिविंग भी नहीं बना सकते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं बना सकते. आप चीजों को कभी सुधार नहीं सकते सिर्फ बोलने से कि हाँ मैं झारखंड को न्यूयॉर्क जैसा बना दूंगा या झारखंड को. तो जब तक आप पॉलिसी मेकिंग में नहीं जाओगे तब तक आप एक्चुअली इफेक्टिवली एज बीइंग ए डॉक्टर आप बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. आप कर सकते हो पार्ट ऑफ में, लेकिन अगर आप पॉलिसी मेकिंग में अगर आप जगह बना पाते हो, और अगर पॉलिसी मेकिंग के लिए ठीक है, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जैसे छात्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वी आर एनफोर्सिंग द गवर्नमेंट कि हाँ ये पॉलिसी में ऐसे चेंजेस करिए. We are regulating the government, we are guarding the government, we are fighting the government to change the policy जहां हमें गलत लगता है. लेकिन अगर आप खुद अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स में आने का जो सबसे मेन कारण है, जो मेन एम जो मुझे दिखता है, वो है कि बिना इसमें आए हुए मैं झारखंड के भविष्य को नहीं बदल सकता. अभी भी अच्छा ही है लेकिन इसको और अच्छा नहीं कर सकता. आज भी हम लोग 32वें से 30वें नंबर में आते हैं पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें, बहुत पिछड़े जगह पे आते हैं. जहाँ की फैक्ट यह है कि 38% जो हमारा जितना मिनरल रिजर्व है वो पूरे इंडिया का यहाँ पे है. तो इन चीजों को, जो हमारी प्रॉब्लम्स है और जो हमारे एसेट्स है, अगर पॉलिसी मेकिंग अगर हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन ठीक करें, और मैं अगर पॉलिसी अगर चीजों को सुधारना चाहूँ तो देयर इज नो अदर वे अदर देन कमिंग टू द पॉलिटिक्स. राजनीति, जैसे मेरे फादर ने एक चीज और कही थी जो हमेशा मुझे याद रहती है कि इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम. तो अगर मैं, और जो सॉल्यूशन मुझे दिखता है, देयर इज नो अदर वे अदर देन चेंजिंग द पॉलिसीज इन अ गुड वे. अगर आप यूरोप का इतिहास उठा के देखो या अमेरिका का इतिहास उठा के देखो, या फिर अभी के टाइम में पिछले 20 साल का गुजरात का इतिहास उठा के देखो, गुजरात अगर उतने तेजी से अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके कारण है कि गुजरात स्टेट की पॉलिसी कितनी अच्छी होते जा रही है. अभी योगी जी के टाइम में देखो, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कारण ये है कि योगी जी ने पॉलिसी चेंज की है. तो इंडिविजुअल जो आपका रोल है सोसाइटी में अच्छा है, बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एज ए लार्ज बहुत सारी अगर परिवर्तन आए तो देयर इज नो अदर वे अदर देन गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स टू मेक चेंजेस इन द पॉलिसी. दैट्स हाउ बेसिकली आई एम इनटू द पॉलिटिक्स. एंड माय फादर वाज नॉट इनटू द डायरेक्ट पॉलिटिक्स, मतलब जो भी था, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था टू change the policies by the government, to always making the effort to make the policies in a good way for the people.
So that has also made a huge impact on me to get into the politics. अब जब बीजेपी में अब बीइंग ए डॉक्टर से बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ है, जो हमारा जो कोरोना के काल के बाद में एक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करा, तो उसमें जो सेवा भाव वाली जो थी, तो बीजेपी की जो मेडिकल सेल है उसको स्टार्ट हुए हार्डली अभी कुछ दिन हुए हैं, मतलब 2 साल के आसपास में सेवा पखवाड़ा के बाद से। और जो प्लान्स हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन चूंकि जैसा आप जानते हैं कि वी आर नॉट फुल टाइमर इनटू इट, तो अब जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो मेडिकल सेल है उसका एक्सपेंशन, हर एक मंडल लेवल पे उसका एक्सपेंशन, जहां जरूरत हो वहां पे इफेक्टिवली जितनी भी हेल्थ केयर नीड है उसको पहुंचाना, उनको गाइड करना। तो जो प्लान्स है बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, और चीजें कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया, भी हम लोग जैसे आपकी जो इंट्रोडक्शन थी जैसा आपने बताया था, I am also planning to fight election from Chatra. Probably if you do not have, if you have any questions, then I will explain later on. हाँ, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो इस तरह मैं आज के दिन में हूँ बीजेपी में, और मेरी अपनी जो पर्सनल आइडियोलॉजी जो है, मैं बिल्कुल फ्री मार्केट सपोर्टर हूँ, जैसे बीजेपी की जो प्राइम आइडियोलॉजी है। मैं पूरी तरह सनातन धर्मी हूँ, जो बीजेपी की प्राइम आइडियोलॉजी, और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बंदा खासकर देश छोड़ के जब बाहर चला जाता है, तो अपने आप बहुत ज्यादा उसका झुकाव अपने मातृत्व के लिए और बीजेपी की तरफ हो जाता है। बिकॉज जितना ज्यादा आज के दिन में पहले भी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव थिंकिंग बीजेपी की, खासकर अपने धर्म को, जो हर एक सनातन धर्मी और हम लोगों की जितनी है, उतनी कहीं और नहीं हो सकती। और बीजेपी के जो खासकर ओपन फ्री मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप बहुत ज्यादा अगर बहुत अच्छे फाइनेंस में हो या बाकी हो, तो ये फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं और। तो फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट आई लाइक दैट। और अगर मैं बात करूं कि हमें तेईस से अगर पहुंचना है, अमेरिका जैसा बनना है या वेस्टर्न यूरोप जैसा बनना है, तो जो हमारी जो पॉलिसीज है बीजेपी, जो आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की, वो इसको बहुत तेजी से हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द my party policies, and I am very happy to be part of the BJP. Great, great. My dear viewers, it becomes very important here when Dr. Abhishek Ramadin Sahab, he is trying to emphasize on the free policy, free market policy. There has to be a thin line of demarcation between the free market as well as the laissez-faire. As per the laissez-faire economy, there is no government regulation, no government control, and everything is in the hands of private players. But when Ramadin Sahab is talking about free market operation, that means there is a restriction. There is restriction to some extent, because free market doesn't mean laissez-faire. There has to be, as I already said, a thin line of demarcation. There, the free market should be subject to regulation. They can never be given the free hand to destroy the national resources. And I'm sorry to say, and to Ramadin Sahab, free market does not mean that means if you will compare USSR, why it was destroyed. Still, if you will see that how much the power USSR has, USSR, the firepower is more than that one. Go into the details. The reason USSR was destroyed because communism was in prevalence. In communism, everything run by the government. And if you will see, like even in Germany, if you will compare, one is Western Germany and Eastern Germany, same country, same resources, same people, but the economy was wide apart. The reason was the economy was communism. In Eastern Germany and Western Germany, it was free market concept. So free market does not mean non-regulation. Government is not to run the businesses. Try to understand. Government is not to run the things. Government is there to regulate, to governance. Government should do the governance. Government should make the rules. Government should make the proper policies that how the things should be. Like क्या इंग्लैंड में या फिर यूके में ऑफ कोर्स, या फिर कनाडा में क्या सरकार जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरी तरह गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। जो स्कूल्स हैं इवन अमेरिका में वो पूरी तरह गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। तो जहां जो आपका काम है गवर्नमेंट को वही काम करनी चाहिए। जैसे पहले था कि इंडिया में भी फ्री बैंक्स थे, बाद में इंदिरा गांधी ने उनका नेशनलाइजेशन किया, अब फिर दोबारा ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी का प्राइवेट बैंक थे नहीं, ये गवर्नमेंट के ही ये थे जिसको हम लोगों ने फिर डिरेगुलेट किया है। तो गवर्नमेंट को चीजों को मार्केट के साथ में छोड़ना चाहिए, उनको डिसीजंस लेने चाहिए। अभी के टाइम में एचईसी यहाँ पे बंद पड़ा क्यों है?
इतनी, आप रांची में आप रहते हैं, मैं रांची में रहता हूँ, इतनी कैपेबल इंस्टीट्यूशंस क्यों बंद पड़ी है? आज ही अगर उसको दोबारा खड़ा करना है, या फिर जो एयर इंडिया सोने की खदान जैसा था, हमेशा पॉजिटिव में रहता था, फाइनली कितना जब नुकसान में पहुंचा था। यही एयर इंडिया पहले टाटा टाटा वाज ओनर ऑफ दैट। बाद में जब हमारी जो सरकार ने इसको रन करने की कोशिश की तो हमेशा निगेटिव में गया। तो सरकार को सरकार का काम करने दीजिए, सरकार से एयरलाइन, खादान और बाकी सब चीज चलाने की कोशिश मत कीजिए। अमेरिका में अगर मैं जॉन हॉपकिंस जहां मान लीजिए मैं था, या हार्वर्ड जहां था, या तो वो सारी की सारी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो हमेशा, हाँ, आप उसको रेगुलेट कीजिए कि कहाँ क्या चीजें सही है गलत है। आप कम्युनिज्म में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो फाइनली आप कितनों टेक्नोलॉजिकली आप अवेयर हो जाएंगे, हमारा वही हाल होगा जो यूएसएसआर का हुआ, या पोलैंड का हुआ, या पूरे के पूरे यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप का हुआ। Thanks a lot. Thanks a lot for your explanation. But I have a question here on behalf of the audience. I'm asking you a question. I am in agreement with your statement in letter and spirit. When you say that government should regulate it, but there should be no interference or minimal interference. I am absolutely Yes. subscribing to your observation. But does it require the government to hand over the national resources on a platter to a crony capitalism, or what we have today is some sort of crony capitalism? Free market does not mean that. You can always regulate. Right now also, if you will see the Jharkhand and the resources of Jharkhand, जस्ट मेरे लाइक इसके लिए कि हाँ मुझे अपना सामान सब कुछ अपने पास में रखना है, तो आप डेवलपमेंट कहाँ कर पा रहे हैं? अभी के टाइम में मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर मिनिमाइज करें, जैसे हमारी इतनी सारी माइंस है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ हमारी आयरन माइंस का। अभी हमारे जो बहुत सारे जो स्टील जो हमारे यहाँ सब, अच्छा, आयरन रिजर्व हमारा झारखंड का नंबर 2 नंबर पे पूरे इंडिया में। 2013 तक 75 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन था, जो कि अब घट के 20 पे आ गया है। ये क्यों आ गया है? क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, चीजों को ओपनली करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना होगा। अगर आप मान लो एक व्यापार अगर स्टार्ट करना चाहते हो, अमेरिका में तो 15 दिन में आपके हाथ में लाइसेंस आ जाती है। अगर आपको मान लो सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे आपने नाम सुना हो कि एक ही विंडो पे आपको सब काम मिल जाएगा, आपको अलग अलग 64 जगहों पे लाइसेंस राज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लाइसेंस राज जैसे कम्युनिज्म में होता था या पहले होता था, राजीव गांधी जी का खुद का कहा हुआ ये है कि 84 के पहले एक कंप्यूटर इंडिया में लाने के लिए आपको 64 तरह के लाइसेंस लगते थे। आप आज के दिन में ही, जो मैंने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ है, मुझे आज के दिन में ट्रेड, मतलब जगह जगह जो है सो जो इतने सारे जो लाइसेंसेज हैं, जब तक आप इसको मिनिमाइज नहीं करोगे तो कैसे होगा? आप जो आप रेगुलेट करने या कंट्रोल कर, तो रेगुलेट करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जैसे मान लो आप घर में ही अगर है, मेरे फादर मुझे डंडा लेके ही कर सकते थे, वो चाहते थे कि जैसे उनका अपना विचार था कि हाँ मैं कॉमर्स में रहूं, लेकिन इट वाज माय डिसीजन कि मैं डॉक्टर बनूं। तो आप फैसिलिटेट कर सकते हो चीजों को, जिस दिशा में जाना है। इसी के लिए तो आपकी टीम बनी हुई है, आपके पास कमीशंस है, बाकी सब है। अभी के टाइम में तो हालत ये है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही, जो पुराने हमें राज्यपाल जी था, हमारी टीम गई हुई थी, तो जो वार्ता में बात आ रही थी कि 1,01,000 करोड़ का बजट था हमारे लास्ट ईयर, अभी 2 महीने पहले तक भी 50% सामान भी यूज नहीं हुआ था। पैसे आप यूज नहीं कर पाते, उसके कारण बैकफायर होकर फंड आपको वापस चला जाता है, सही आप इतने गरीब हो। तो क्वेश्चन, सब चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आपका जो काम है, जैसे बजट ही अगर हो गया, तो आज साल में एक बार जो आपका बजट का मीटिंग होता है, उसकी समीक्षा बैठक अगर हर एक महीने हो, हर एक 3 महीने हो, हर एक 6 महीने हो, तो जो आपका बजट है आप उसको यूज तो कर पाओगे। तो जो चीजें हैं जो आपके हाथ में है, आप गवर्नमेंट तो अपना रन नहीं कर पा रहे हो और जबरदस्ती आपको बाकी सब चीज भी रन करना है। तो अगर गवर्नमेंट जब भी चीजों को रन करने की कोशिश करेगी, तो उसका हाल वही होगा जो एयर इंडिया का हुआ है, मैक्सिमम चीजों को हुआ। जहां भी गवर्नमेंट प्रॉफिट में है, और मैं ये नहीं बोलता, जो चीजें हैं डिरेगुलेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्रोनी कैपिटलिज्म के हाथ में सब कुछ फेंक दे रहे हो। आपका अपना तंत्र बनाओ, तरीके बनाओ, लेकिन हर एक चीज को जैसे प्योर जो हमारी कम्युनिज्म की तरह हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर एक चीज अपने हाथ में कोशिश मत करो। नहीं तो आप कितनों टेक्नोलॉजिकली रिसर्च वाइज आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, पिछले 200 साल का आप अगर इतिहास देखोगे पूरे दुनिया में, तो वो बताती है यही कारण क्या था। यही पोलैंड में आप अगर बात करोगे, पोलैंड की वार्सा और बाकी, ये पोलैंड थी जो कि एक टाइम में पूरे यूरोप का सबसे नंबर 1 जगह पे हुआ करता था।
जैसा ही मान लो अभी यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस के कारण में बाकी सब जितनी भी कंट्रीज, चाहे वो ईस्टर्न जर्मनी हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे मतलब जितनी भी आपकी ईस्टर्न यूरोप में आती है, सबका भट्ठा बैठा। कारण ये था कि इन लोगों, इन कंट्री में सब कुछ सरकार का था। और जैसा ही आप वेस्टर्न यूरोप में जाओगे, दे आर प्रोस्पेरस, दे आर डूइंग एवरीथिंग। यहाँ पे सरकार ने सिर्फ सरकार का काम किया। जैसे आपको, अगर आप झारखंड में आज बात कर रहे हो, तो सरकार सरकार का काम कहाँ कर पा रही है? क्या आपके माइंस चल रहे हैं जितनी जगह पे? क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? क्या सिंगल विंडो है? क्या बाकी चीजें हैं? नहीं है। सरकार अगर सही तरीके से सिर्फ सरकार का काम कर ले तो प्रोस्पेरिटी तो अपनी आनी ही आनी है। अभी के टाइम में जैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, जैसे दिल्ली में है या फिर अपने ही यहाँ पे हो गई, जैसे वो शराब का जो ठेका हो गया वगैरह, वाई आपको क्यों करना है उसको? आप फ्री मार्केट के पास छोड़ो उसको, लेट द मार्केट डिसाइड हाउ द थिंग्स बी। कभी भी अगर सरकार अगर चीज को अपने हाथ में रेगुलेट करने की कोशिश करती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पक्ष होता है, कुछ नेताओं का, कुछ लोगों का अपना आर्थिक हित होता है, तभी चीजें। और मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है पूरी दुनिया में, मैं बीच में आपको बोलना भूल गया था, मैं मिडिल ईस्ट में भी मैं काफी दिन काम करा था, 6-8 महीने के आसपास में, बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन यूएस, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो, पढ़ाई करने के लिए। तो जो मैंने पूरा दुनिया जो देखा है और जो उसका जो खाता जाता है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को गवर्नेंस करना चाहिए, गवर्नमेंट को चीजों को रन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्कूल चलाना आपका काम है। आज के दिन में झारखंड के सारे स्कूल सरकार के पास में है, केंद्र सरकार का अपना रोल है, हेल्थ के जितने भी हैं सब आपके सरकार के पास में है। पीपीपी मान लीजिए, अगर मान लीजिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार कोई भी चीज अगर चलाने की कोशिश करती है तो कहीं भी वो सक्सेस नहीं होता। सरकार को सरकार चलाना चाहिए। Great, great, Dr. Sir. Thanks a lot. My dear viewers, we have seen Dr. Abhishek Ramadin. No, his vision is he has developed a kaleidoscopic vision because of his exposure to the different parts of the country, and of course, joining politics, and especially the sort of for a man with such perspectives, because he has a various perspectives that definitely will help Jharkhand. How? Definitely will come to him a while later. We are straightway coming to the next question, Dr. Saab. Very, very important. You have joined politics for the development of the people of Jharkhand. What is your vision for Jharkhand? We'll come to your BJP part, all that, Chatra later. But now you have joined politics, and you said to me in course of private conversation that your overall mission to join politics is to think about the holistic development of the state, which you also unfolded your vision just in the preceding question when you said that why should Bihar and Jharkhand remain so much impoverished? So what is your holistic vision? Our viewers and the people of Jharkhand definitely would like to know about that holistic vision. Your take on this, please. तो विवेकानंद जी, मैं अपना पूरा जिंदगी इस बात पे न्यौछावर करना चाहूंगा कि कैसे जो मेरे यहाँ पे जो लोग हैं, जो झारखंड है, जिस जहाँ पे मैं पैदा लिया, जहाँ का मैं पार्ट हूँ, मैं यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, ईज ऑफ लिविंग को इनके जिंदगी का पार्ट बना पाऊँ, मैं कैसे यहाँ के लोगों की जो जिंदगी का स्टैंडर्ड है, जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जो लोगों को हर एक को रोजगार मिले, हर एक को शिक्षा मिले। एटलीस्ट अगर आप बात करें जैसे इंडिविजुअल की, तो हर एक जिले में एक्चुअली में आइडियली एक मेडिकल कॉलेज हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक एग्रीकल्चर कॉलेज हो, एक यूनिवर्सिटी हो, एक रेलवे का अच्छा कनेक्टिविटी हो, एक एयरपोर्ट हो। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लोगों को लगा कि बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। चीजें तो इसके बाद में शुरू होती हैं। आपके पास अगर एक मेडिकल कॉलेज, एक एग्रीकल्चर कॉलेज, एक इंजीनियरिंग, उसके बाद में ना आप रिसर्च या बाकी की बात करोगे या आगे की बात करोगे, तो हम तो, मेरे पास तो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पिछड़े जगह पे हैं। इंडिया की ही बात करें, इंडिया ही पर कैपिटा इनकम से हम लोग बहुत जगह नीचे आते हैं, और इंडिया में भी झारखंड सबसे नीचे आता है, मतलब 30वें नंबर पे, 32वें पे अगर देखो। और झारखंड में भी अगर मान लो जहां का मैं हूँ, अगर चतरा का, तो और सबसे नीचे आता है। तो चारों तरफ जो जो केओस है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो चीजें जिस हिसाब से रन हो रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि चीजों अच्छी हों, चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। और मेरे लिए अगर जिंदगी में ही अगर मैं देख पाया कि हाँ, झारखंड
आज जैसे हम लोग महाराष्ट्र को, दिल्ली को या गोवा को देखते हैं कैसे आगे बढ़ना है, कर्नाटका को, मेरे जीवन काल में ही बाकी स्टेट, बाकी लोग झारखंड की तरह अगर देख पाए कि हाँ झारखंड इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा, जैसे आज उड़ीसा आगे बढ़ रहा है, या फिर जैसे लोग देखते हैं गुजरात मॉडल के बारे में बात करते हैं, यूपी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में ही लोग मेरे झारखंड को भी वैसा ही देखें। हमारे झारखंड की जो जनता है वो बहुत खुशहाल हो, नॉलेज बहुत इजीली स्प्रेड मिल सके, और जो भी छोटी छोटी जैसे कि हम लोग बात जो हमारे पास आज के दिन में अवेलेबल नहीं, उससे हम बहुत ऊपर का सोच सके। आज के दिन में जैसे अगर मेडिकल कॉलेज की मैं हर एक जिले में बात करूं तो लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ से डॉक्टर्स आएंगे, कहाँ से। लेकिन वो तो बहुत बेसिक है। अगर आपके पास में मेडिकल कॉलेज होगा, आपके पास में रिसर्च ये होगा, तब ना फिर आप आगे सोच पाओगे कि हाँ मुझे हार्वर्ड कैसा कैसे बनना है, अमेरिका ऐसा कैसे बनना है। तो जो बेसिक संसाधन है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों को किसी भी तरह से उनको लाना चाहिए, करना चाहिए। अपने एजुकेशन पे बहुत फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा अगर अच्छी नहीं होगी तो आप खोल भी लोगे तो वहां के लोकल लोग काम नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही जो मुख्यमंत्री जी के पास में हमारी जो प्री बजट मीटिंग थी उसमें गया हुआ था, तो हेमंत सोरेन जी जैसा कह रहे थे कि पहले और आज जो जमशेदपुर में जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ जो भी चीज खुल रहा है, अभी खंडवा में जैसे एनटीपीसी खुल रहा है, तो मैक्सिमम जो है लोग बाहर के हैं। तो इतना बड़ा स्टिग्मा और क्या हो सकता है हमारे लिए, कि हमारे पास अपने उतने ट्रेंड लोग नहीं है, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहे हैं। अभी मैं जब सोचता हूँ कि मुझे चतरा में मेडिकल कॉलेज बनाना है, मेडिकल कॉलेज रन करने के लिए 400 से 600 डॉक्टर्स चाहिए, मेरे पास 50 डॉक्टर्स नहीं है वहां पे, मैं कैसे बनाऊंगा। और जब तक ये एडुकेशन नहीं होगा, हमारी सोसाइटी एडुकेटेड नहीं होगी, रिसोर्सेज एडुकेशन में नहीं बढ़ेंगे, तब तक बहुत ज्यादा चीजें पॉसिबल नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ, खासकर मोबाइल से अगर देखूं और बाकी देखूं, रिसेंटली बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन इसको बहुत युद्ध स्तर पे करने की जरूरत है, इसको बहुत जल्दी में बहुत त्वरित करने की जरूरत है, और नए सोच के साथ ये सब करने की जरूरत है। दैट्स हाउ आई फील। Great, great, Dr. Sir, great. Now, straight we come to the next question. Of course, what you say, I'm absolutely in agreement with you, because indeed we need the the uplifting of the people languishing at the bottom of the social pyramid. Because I would just like to recall my dear viewers, and of course to our esteemed guest today, when I wrote my book on Honorable Prime Minister and Hindu nationalism in 2014, with which Mr. Modi himself launched in Vibrant Gujarat Education Summit. Only Mr. Modi till date has launched only one book on himself. That is a book I wrote, the Delhi Vacancy Raga for Namo. Here, Mr. Arjun Munda had launched it in Circuit House. He was putting up in Circuit House then as an opposition leader. So while I was going for the launch, one of the Adivasi boys of this particular area, he very pleadingly, he just pleaded with me, and he said, "Sir, why don't you write a book on Adivasi?" The sort of emotion that was there in his statement, indeed, it just rent my heart. I recall it, with all sort of nostalgia, that how the boy had so much, he was so much empathetic for his own people. Here in our august guest, Dr. Abhishek Ramadin Sahab, he is the man from Chatra. He is born and brought up, he is the resident of Chatra. And he has a vision to develop the people of Jharkhand, and he is the son of the soil. That is the biggest introduction of Dr. Abhishek Ramadin Sahab. He is the son of the soil of Chatra. Now coming the next question to you, Dr. Sahab. You are planning to contest the upcoming general election in 2024 from Chatra. Why do you think that BJP will nominate you from there? What is your viewpoint? Why you are thinking of contesting and all that? Please tell us in just your take now. थैंक यू विवेकानंद जी। देखिए, जब चतरा की बात करूं तो मेरी जन्मभूमि वही है, और भविष्य में मैं चाहता हूं कि वो मेरी कर्मभूमि भी हमेशा वही रहे। अभी चूंकि मेरा घर वहाँ है तो बीच बीच में मैं जाता रहता हूँ, अपने लोगों से मिलता रहता हूँ। और आज के दिन में जो चतरा का जो बुरा हाल है, मतलब बाकी तो क्या बात कहें, 75 साल में हमारे पास में एक रेलवे स्टेशन तक नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है। मतलब बाकी की क्या बात करें, एक आईटीआई खुला था लगभग 10-15 साल पहले,
वो भी फंक्शनल नहीं है। जिस बचपन में जिस स्कूल में मैं चौपियाबाग के स्कूल में जाता था, उस स्कूल को बंद कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया कहीं और से। तो आज प्राइमरी स्कूल के बच्चे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के नहीं जा सकते, माँ बाप को साइकिल से या दूसरी चीज से वहां पहुंचाना होगा। तो मतलब अभी भी कोई सोच नहीं है। बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए थी, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सांसद या बाकी लोग ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया होगा, कोई नहीं चाहता कि उनके क्षेत्र का डेवलपमेंट ना हो, हर एक अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनका क्षेत्र सबसे अच्छा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी कारण रहा, आज तक चतरा को जो जगह मिलनी चाहिए उस जगह पे नहीं पहुंच पाया है। और एज माय फादर ऑलवेज सेड, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। एंड आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, I had responsibility and I have been have responsibility of my people, जो मेरा अपना है। किसी भी कारण से, जैसे भी आज के दिन में माँ भद्रकाली की कृपा से अगर मैं इतना हो पाया हूँ, तो मुझे, अगर मैं पूरा दुनिया घूम पाया हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल्स में रिसर्च कर पाया, अगर मैं मास्टर में रिसर्च कर पाया, बाकी जगह कर पाया, तो जो चीज मैं सीखा है उनका भरपूर फायदा मेरे अपने लोगों को होना चाहिए। मुझे अपने लोगों की जिम्मेदारी लेनी है, मुझे अपने लोगों को, वहां के लोगों को एक नए जगह पे पहुंचाना है, एक नई डेवलपमेंट की आंधी लानी है, एक्चुअली मैं बोलूं। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा, जो मैंने पहले भी बोला, कि मेरे चतरा में जल्दी से जल्दी एक मेडिकल कॉलेज जैसे भी हो स्टार्ट हो जाए, बड़ा उसके साथ हॉस्पिटल स्टार्ट हो, एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट हो, एक यूनिवर्सिटी एटलीस्ट स्टार्ट हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे स्टार्ट हो। मेरे चतरा में कम से कम एक एयरपोर्ट जल्दी से हो जाए। जो अभी बातें कर रहे हैं रेलवे की, बहुत दिन से प्लानिंग बनाया जा रही थी, तो एक रेलवे स्टेशन अपना जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो। तो आई हैव ह्यूज प्लान्स फॉर माय नेटिव प्लेस, मेरी जन्मभूमि चतरा के लिए। और मुझे लगता है कि जो प्लान्स हैं, अगर मैं पॉलिसी मेकर बनूं, अगर मैं सांसद में प्रतिनिधि के रूप में जाऊं और अपने लोगों के लिए काम करना चाहूं, तो शायद, नॉट शायद, मैं पूरी तरह लगभग कहता हूँ हाँ, मैं बहुत जल्दी समय में कर पाऊंगा। क्योंकि जो अंदर का अटैचमेंट एक धरती पुत्र का, एक वहां के जो पैदा लिया है, जिसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं अपने पिता के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण यहाँ हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र के कारण जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना सोच के, जितना आगे मैं बढ़ा सकता, जो सोच मैं बढ़ा सकता, जो कर सकता, मुझे नहीं लगता है कि वैसा अटैचमेंट किसी और का जल्दी वहां होगा। और भगवान की दया से जितना मुझे वास्ट एक्सपीरियंस मिला है चारों तरफ से, आज के दिन में भी जितना अच्छा मैं चारों तरफ जो कोशिश कर रहा हूँ काम करने का, तो इन सब एक्सपीरियंस और बाकी सब कोई कारण, मुझे लगता है कि मेरा चतरा में जाना और चतरा के एक बेटे का इतना पढ़ना लिखना, ये एक बहुत अच्छा साइन है चतरा के लिए, झारखंड की जनता के लिए, जो लोग मुझे जानते हैं उसके लिए, सोसाइटी जिसमें मैं रहता हूँ उसके लिए। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ओवर देयर। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जो हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट को चुनती है। वहां पे कहीं किसी तरह का कुछ नहीं होता कि ये इसका बेटा है, या ये इस कास्ट से है, या इस कलर से है, ये इस धर्म से है। बीजेपी हमेशा न्यूट्रल रही है और वो सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट को चुनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी मुझे पूरा मौका देगी। मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि यूथ का वहां हो, मैं यंग हूं, और जिस तरह का सोच मेरा है, मेरी पार्टी मुझे वहां से डेफिनेटली टिकट देगी। ग्रेट। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आता है, आज तक चतरा के जो खुद के लोग हैं वो एमपी नहीं बने, बाहर के हाँ लोग एमपी बने हैं। आपको हाँ। हाँ विश्वास है कि आप धरती पुत्र को ही जो है बीजेपी टिकट इसमें देगी? टाइमर लगा हुआ है, तो खत्म हो रहा है, काम खत्म हो जाएगा ये।